So why are NRIs selling off their properties in India and running away? What is happening? तो कुछ गड़बड़ होगी इंडियन मार्केट में या is it like what's going on? So there are 4-5 points which are actually making a lot of NRIs sell off their properties and go, and there is nothing bad about the Indian market. Let me start with that. But there are very genuine specific reasons where a lot of my NRI clients are now telling me कि यार अब बेच देते हैं, यहाँ से निकलना है, अभी पैसे वहाँ लेके जाने हैं. तो 4-5 चीज़ें हो रही हैं, ठीक है. नंबर 1 is, and the most important is, the rupee is actually depreciating. ठीक है. So like right now when I'm recording this, the rupee is around 93 rupees. It used to be like 87, then 90 or so it's been constantly क्या हो रहा है, थोड़ा it is coming down. So say now if you were an NRI sitting in US, you're like my money has gone down by 6% or 10% or 20% in 2-3 years. अगर आप last 2 years देखो तो वैसे काफ़ी सारी currencies के comparison में rupee has gone down by about 20-25%. And if the returns are not great तो आप भी यही सोचोगे. So what's happening is people who had bought properties earlier and who have made a profit also, or who have ancestral properties and prices have gone up so high already, so it does come in their mind that maybe it is a good time to cash in on this and take the money back to like maybe US or UK or wherever they live, you know. Even the Malaysian currency is probably gone, I think it's gone up by like 36% in a year. Crazy compared to rupee. Bad for us, but what to do. So somebody sitting in Malaysia is probably going to think, yeah, let me take my money back. Had I taken, अगर वो 1 साल पहले पैसे लेके होते तो 36% तो वैसे ही बढ़ गया था उनका. इतना तो यहाँ नहीं बढ़ेगा साउथ दिल्ली में अगर आपकी कोई प्रॉपर्टी है. तो वो एक बहुत एक इंपॉर्टेंट रीज़न हो गया. दूसरा एक रीज़न मैंने ऑलरेडी बोल दिया. अब जिनके ऑलरेडी इतने प्रॉफिट्स हो गए हैं, प्राइसेस इतने हाई आ गए हैं, उनको लगता है कि हम इसको ले जाते हैं. थर्ड क्या है कि रेंटल रिटर्न्स इन इंडिया, आई मीन ऑल ओवर इंडिया बट मोर सो इन साउथ दिल्ली, आर एक्चुअली वेरी पुअर. यू नो, दे आर लाइक 2-3%. तो 2 से 3% आप कमा रहे हो, करेंसी आपकी 5 से 10% कम हो रही है, कोई तुक ही नहीं बनता. आई मीन, सो you know, if you put yourself in the shoe of such a guy, I understand this is how it is. Some people still hold on to their properties because they want diversification. तो अब आपका बहुत बड़ा US में पोर्टफोलियो है या सिंगापुर में कहीं आप रहते हैं, बहुत बड़ा पोर्टफोलियो है. Now you also want to maintain some portfolio in India, so you say ठीक है यार, एक प्रॉपर्टी यहाँ पड़े रहने दो. Then it kind of makes sense. And of course you're going to make some money on it and it's going to go up in value a little bit. There is also this feeling of, you know, India is my home. If something goes very horribly wrong, like right now there are a few things going on in the Middle East. आप मिडल ईस्ट में कहीं रहते होंगे तो आप कहेंगे दिल्ली में अपना एक बेस तो है ना. सो उस एंगल से ठीक है. बट से नाउ इफ यू इन्वेस्टेड इन 4-5 प्रॉपर्टीज इन योर लाइक 1-2 बेच देते हैं तो बंदा बाहर भी निकल जाता. फिर दूसरा क्या है कि इसके अंदर काफ़ी सारी वो भी हैसल्स हैं, कॉम्प्लिकेशंस ऑफ पेपर वर्क जो काफ़ी एनआरआईज को पसंद नहीं आती. और क्योंकि अब वैल्यू इतनी बढ़ गई है तो उनको लगता है कि चल अगर इसको हम निकाल देंगे तो काफ़ी सारे फ़ायदे इकट्ठे हो जाएंगे. जैसे कि आप इसको डाइवर्सिफाई कर पाएंगे. यू कैन टेक दिस मनी इनटू इक्विटी, यू कैन मे बी गिफ्ट सम टू योर किड्स हु हैव ग्रोन अप नाउ, और साथ में करेंसी भी आपकी थोड़ी सी और स्ट्रांग हो रही है एज आई ऑलरेडी कवर्ड बिफोर. तो ऐसा नहीं है कि एनआरआईज एकदम से गायब हो रहे हैं इंडिया से और उनको लग रहा है इंडिया कोई ख़राब है या इकॉनमी ख़राब है या कुछ है. पर ये रिसेंट टाइम्स में मैंने देखा है, क्योंकि काफ़ी मेरे NRI clients, I keep discussing, I mean every time I'm traveling I go and meet my clients and I spend time with them, so all of them seem to have these kind of viewpoints. और एक रीज़न काफ़ी सारे NRIs के लिए ये भी होता है कि यार हम यहाँ रहते नहीं है, we are not here maintaining a property, taking care of it, कुछ गलत ना हो जाए, कुछ कब्जा ना हो जाए, कोई प्रॉब्लम ना हो जाए, कोई सीपेज आके काम कौन करवाएगा. You know, all of these things also become like an issue, so that also adds to this, and I have noticed recently a little more than before. I think we human beings, you know, are becoming a little bit lazier also, or more efficient with where we spend time and energy. So I think that is also become a reason because of that. By the way, if you are an NRI or if you know somebody else who is an NRI, आपकी फैमिली में है, दोस्त है, मेरे वीडियोस आप सब्सक्राइब कर लो या उनको भेज दो, उनको भी बोल दो सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि हम ऐसा बहुत सारा कंटेंट बनाते हैं जो शायद आपको कोई और नहीं बताएगा. दिस इज़ ऑल हैंड्स ऑन एक्सपीरियंस. हम डील्स करते हैं, हम ऐसा नहीं है कि हमने कोई थ्योरी में कोई बुक पढ़ लिया, कि ChatGPT से पूछ लिया. यू नो, वी आर एक्चुअली डूइंग दीज डील्स ऑन द ग्राउंड एंड वी फेस सच थिंग्स एवरी डे. एंड हमारे पास जो इन्फॉर्मेशन है वो ऑन द ग्राउंड है, जिसे कहते हैं ना बूट्स ऑन द ग्राउंड. तो वो है. और अगर कल को कोई क्राइसिस आ गई या कोई अपॉर्चुनिटी आ गई या कुछ आ गया या कुछ ऐसी चीज़ है जो हम पहले ही स्मेल कर लेते हैं कि आने वाली है, यू नो, वो जो डॉग्स नोज वाली जो बात है वो हमारी है. सो मे बी वी कैन ऐड सम वैल्यू टू यू. आपका कुछ नहीं लगेगा.